Hello students, in the last classes we had studied about sedimentation and sedimentation tank. What is sedimentation? Sedimentation is the process in which the solid particles which are carried away with the raw wastewater are allowed to settle to the basin of the settling chamber, and a clear effluent is taken out for further treatment processes, and a sludge which is consisting of the settled solids is taken out from the system, right? So what happens is that the settling efficiency or the efficiency of a sedimentation tank always depends upon the size of particles which are inside the raw material or which are inside the raw wastewater, right? So if the size of particle or the impurities size is of considerable size, then which will have higher mass, and these will settle down at the basin automatically and can be removed away from the wastewater. But what happens is, if the suspended solid particles size is smaller, right? So after a certain limit, when the size becomes so small that suspended solid become a colloid solution, and it does not settle in on its own, or what happens is it does not settle as fast as the particle of larger sizes, then the treatment efficiency of the sedimentation tank, or you can say the separation efficiency of the sedimentation tank is considerably reduced, right? So the efficiency of sedimentation is comparatively very less if water consists of fine suspended particle. Hence, in order to increase the efficiency of this sedimentation tank, in which raw wastewater is carrying a larger chunk of suspended solids which are in the range which is not settleable on its own, then there are a few chemicals added to form settleable portions, of to form settleable chunks of solids of these suspended solid, which can settle after forming a greater mass, or after forming a flock which will have a greater mass than the mass of the individual solid. So the such type of sedimentation is called coagulation aided sedimentation, right? So what happens is, there are three stages in coagulation aided sedimentation. The first is coagulation, which is the fast mixing, which is also called flash mixing. The second step is flocculation, which is called slow mixing, and the third step is called sedimentation. So the sedimentation tank that you had earlier designed for solids which were not requiring coagulation, those are of different design, and the sedimentation tank that you will design for coagulation aided sedimentation will have different design parameters, right? So what is coagulation? Basically, coagulation, it is the process in which certain chemicals termed as coagulant are mixed in water in order to neutralize the negative protective charge present over the impurities, so as to increase their opportunity to come in contact with each other, thus grow in size and get easily settled in the following sedimentation process. So what is happening is, in order to neutralize the charge over the suspended impurities, a minimum energy termed as threshold energy is required, which is provided by inducing fast mixing in coagulation, right? So this neutralization needs energy called threshold energy. So what actually happens is, let me tell you that what happens is that the first portion is the inlet portion in which the raw feed water is being feeded, right? The second portion of this sedimentation tank will consist of fast mixing, right? That is, the tank will have blades which would be mixing very fast, right? So what happens is that what we do is that we introduce a chemical which may be in wet form or which may be in dry form. In wet form, basically means that we form a solution of the chemical
that we are using to neutralize this protective charge, and then we mix it to the raw material or to the raw wastewater, or we can directly add it in the powder form, but controlling the powdered form becomes very difficult. So we mostly use this chemical in a controlled manner by using it in wet form, right, by making a liquid suspension of this material, whatever material it can be. And what we do is flash mixing. Flash mixing is that we mix it in between 30 to 60 seconds at a higher rate. That is, the blades of the mixer will move at a higher rate for 30 to 60 seconds when the coagulant is being mixed. This mixing is called flash mixing. And what we do is that if we are mixing it for less than 30 seconds, what happens is that when you are mixing it with less than 30 seconds, it does not mixes properly, so the coagulation is slow, right? And if we mix it beyond 60 seconds, what happens is that the flocks start to form, and the blade of mixer अगेन ब्रेक्स डाउन दोज फ्लॉक्स. मतलब अगर कंटिन्यूस हम मिक्सिंग करते रहेंगे तो कम अगर मिक्सिंग करेंगे तो क्या होगा कि आपका फ्लॉक्स फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है. और अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक मिक्सिंग करते रहेंगे तो उससे ये होगा कि जो फ्लॉक्स फॉर्म हुए होंगे, आपने कोगुलेंट डाला, कोगुलेंट डालने की वजह से क्या हुआ कि एक जेल टाइप का जो है वो आपका डेवलप हो गया उसमें लिक्विड में, और जब ये जेल टाइप का डेवलप हुआ तो ये जो है इनकम्पास कर लेता है आपकी इम्प्योरिटी को, और उसके बाद उसको जो है एक स्टिकी मटेरियल जो है वो बना लेता है जिसको हम फ्लॉक कहते हैं. यानी कि वही मटेरियल जो आपके सस्पेंडेड सॉलिड में जो है वो सस्पेंडेड हैं उनको जो है आपस में करीब ले आता है, वो करीब ले आके जो है वो एक गुच्छा टाइप का बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लॉक. और अगर हम जो है वो कंटिन्यूसली मिक्सिंग करते रहेंगे एट ए हायर रेट तो क्या होगा कि जो मिक्सर के ब्लेड्स हैं वो मिक्सर के ब्लेड्स जो हैं वो क्या करेंगे कि इन फ्लॉक्स को जो है वो फिर से तोड़ के इनको फाइनर पार्टिकल्स में डिवाइड कर देंगे. दैट इज़ कि आपका कोगुलेशन का जो मेन पर्पस था टू फॉर्म फ्लॉक्स सो दैट दोज फ्लॉक्स बिकम सेटलेबल, ठीक है, वो मकसद आपका जो है वो पूरा नहीं होगा. तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम ये करेंगे कि हम फास्ट फ्लैश मिक्सिंग करेंगे फॉर 60 सेकेंड. उसके बाद क्या करेंगे कि कंटिन्यूसली जो है ये मिक्सिंग जो है वो चालू रहेगी, और उसके बाद जो है वो स्लो मिक्सिंग करी जाती है जो कि आपका जो है फ्लॉकुलेशन चैम्बर में जो है वो प्रोवाइड करी जाती है. यानी कि क्या है, सबसे पहले आपका इनलेट है, इनलेट के बाद फीडिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसमें जो है आपका रॉ मटेरियल को जो है आपका जो भी कोगुलेंट है वो फीड करा जाएगा. उसके बाद फिर जो है वो मिक्सिंग बेसिन है, मिक्सिंग बेसिन में आपका जो है बहुत फास्ट मिक्सिंग होगी, फ्लैश मिक्सिंग. उसके बाद जो है आपका फ्लॉकुलेशन चैम्बर है, यानी कि जिसमें जो है आपका फ्लॉक्स जो है वो धीरे धीरे उनको मिक्स करा जाएगा, यानी कि ब्लेड्स विल मूव एट लेसर स्पीड्स, ठीक है. और उसके बाद वहाँ पर जो है वो सेटलिंग शुरू होगी, और उसके बाद फिर आपका सेडिमेंटेशन चैम्बर है जिसमें जो है ये आपके सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक. तो अब इसके लिए जो है जो कोगुलेंट्स यूज़ होते हैं, कॉमनली यूज़ कोगुलेंट है, उसमें सबसे पॉपुलर है आपका एलम, ठीक है. एलम क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइस 18H2O हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है. तो क्या हो रहा है कि एलम जो है वो रिएक्ट करता है जो अल्कालिनिटी प्रेजेंट है वाटर में, और उसकी वजह से जो क्या होता है कि स्टिकी जेलेटिनस यानी जेल टाइप का जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, जो कि आपके फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जो हैं उनको अट्रैक्ट करता है अपनी सरफेस पे. यानी क्या हो रहा है कि जब आप एलम ऐड कर रहे हैं तो एलम में ऐड करने की वजह से जो अल्कालिनिटी है, ठीक है, उस अल्कालिनिटी की वजह से जो है वो आपके वो हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं वो आपके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं जो कि एक जेल के फॉर्म में रहता है, स्टिकी सा रहता है. और इसकी स्टिकीनेस की वजह से क्या होता है कि जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं वो इस जेल की सरफेस के ऊपर जो है वो स्टिक कर जाती हैं, और ये स्टिक करते करते क्या होता है कि इनका साइज़ जो है वो ग्रो हो जाता है, और जब इनका साइज़ ग्रो हो जाता है तो मास इंक्रीज़ हो जाता है. मास इंक्रीज़ हो जाता है तो ये जो है आपके आसानी से सेटल हो सकते हैं इन सेडिमेंटेशन प्रोसेस. आपकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है Al2SO4 का होल थ्राइस 18H2O, यानी कि आपका जो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट है उसको आपने ऐड करा तो उसमें जो अल्कलिनिटी प्रेजेंट थी, ठीक है,
3CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो ये जो है इसने क्या बनाया, इसने आपका जो है वो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ठीक है, और इसका कैल्शियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनाया, CO2 बनाया, H2O बनाया, ठीक है। तो जिसमें अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है वो जेलेटिनस होता है, स्टिकी होता है, ठीक है। तो अब ये जो है आपका इसके अराउंड जो है वो आपके फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो स्टिक कर जाएंगे, स्टिक करके मास इंक्रीज़ हो जाएगा तो फ्लॉक्स बन जाएंगे, फ्लॉक्स बन जाएंगे तो फिर आपके इजीली सेटल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका वाटर जो है, जो आपका रॉ वाटर है, उसमें अल्कलिनिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर अल्कलिनिटी प्रेजेंट नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर अल्कलिनिटी नहीं प्रेजेंट है नेचुरली, तो एक आर्टिफिशियल अल्कलिनिटी जो है वो प्रोड्यूस करी जाती है। कैसे वो होगी, या तो हम लाइम ऐड कर देंगे या फिर सोडा ऐश ऐड कर देंगे। तो आप जब किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट पे जाइएगा तो आपको मोस्टली जो है वो आपको ट्रीटमेंट प्लांट पे जो है आपको दो जो है वो अलग से जो है आपकी जहाँ पे मिक्सिंग हो रही होगी सेडिमेंटेशन टैंक से पहले, तो वहाँ पर आपको जो है दो अलग जो है वो आपको ड्रम रखे दिखेंगे। तो एक में जो है आपका वो एलम होगा, ठीक है, हाइड्रेटेड, और दूसरे में जो है आपका लाइम होगा या फिर सोडा ऐश होगा, लाइम होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो ऐड करे जाते हैं, ऐड होने के बाद जो है ये अपना काम करते हैं, फ्लॉक्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो है वो आप रिएक्शन देख सकते हैं, इस तरीके के रिएक्शन होते हैं। अगर जो है आपने वो ऐड करा है, ठीक है, कहते हैं लाइम ऐड करा है तो ये ऊपर वाला रिएक्शन होगा। अगर आपने जो है वो सोडा ऐश ऐड करा है तो आपका ये वाला सेकंड वाला रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो है इस वजह से जो है आपकी हार्डनेस और एसिडिटी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो अब ये डोज ऑफ एलम जो है वो डिपेंड करती है कितनी टर्बिडिटी है, कितना कलर है, ठीक है। ये अब इसके लिए एक जार टेस्ट होता है, वो आप लैब पे जो है जार टेस्ट करते हैं, जिससे जो है आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कितना एलम की ज़रूरत होगी। आप रॉ सैंपल लेते हैं, रॉ सैंपल लेके जो है उसको मिक्स करते हैं, मिक्स करके जो है उसके फ्लॉक्स फॉर्म करते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड आप पहले से निकाल चुके होते हैं, जो सस्पेंडेड सॉलिड जो निकालने का प्रोसेस है उसके थ्रू आप सस्पेंडेड सॉलिड निकाल ही चुके होते हैं। और इसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड हैं उसको जो है फिर आप मिक्सिंग करते हैं प्रॉपरली दोनों चीज़ों की, लाइम और उसकी, और आप उनको जो है जो प्रेसिपिटेट या जो भी स्लज जो फॉर्म होता है उस स्लज को वेट कर लेते हैं। तो उससे आपको एफिशिएंसी पता चल जाती है कि कितना एफिशिएंट है ये। अलग अलग डोजेज आप जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगी वो आपका ऑप्टिमम डोजेज कहलाएगा, ठीक। द नॉर्मल डोज ऑफ एलम इज़ इन द रेंज ऑफ 10 to 30 milligram per liter. Alum also remove taste, color and odor from the water. Alum works in the pH range of 6.5 to 8.5, ठीक है। और एडिशन ऑफ एलम इन वाटर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज, क्वांटिटी ऑफ विच कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलोज, ठीक है। ये आप इस रिएक्शन से जो है वो डायरेक्ट क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एलम का हो गया। इसी तरीके से जो है और भी केमिकल्स ऐड करे जा सकते हैं, सेम तरीके की प्रोसेसेस हैं, और वो आप देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगा।